welcome. You're joining us on NewsX Influencer A-List with a brand new episode. With us on the broadcast today is a regional content creator. We have Jhilam Gupta with us. Now, she makes content in Bengali, and it's rather interesting to see what the content is. It's primarily comedy, but the fact that the target audience is not spread across India, it's primarily for the Bengali people, for people that understand the Bengali language. That's all the more interesting. So, Jhilam, firstly, thank you so much for being with us on the show, and welcome to NewsX. Thank you. Thank you for having me. I'm glad that you have chosen me for this interview. The pleasure is all ours, and we want to pick your brains. We want to start by understanding content creation. A lot of people think कि करना है because in our generation हम लोग इतना रहते हैं social media पर that I think for us it comes very naturally. But when did you start making content, and why start making content in Bengali? I started in 2020, but in December. So you can say that I started my journey of content creation from 2021 only. And what was your second question? Why start making content in Bengali? Yeah, Bengali is my mother tongue. I was not really ready to take up content creation as my profession. But when I started off, people liked it. And so it just went on and on. So what is the kind of content that you're making, Jhilam? Tell us a little bit about the funny videos that you're making, how you're making people laugh. I actually prefer to do content based on things that people can relate with. So मान लीजिए कि one of my videos is on Saraswati Puja, went viral, and then came the video that made a huge impact on my career. I mean, content creation career. It was a video on ladies compartment that we have in our local trains. So it earned more than 1 crore views. So it was huge for me. Yeah, it was huge for me. And मुझे जैसे ही लगा कि हाँ ये तो बंगाली में ही कर रही हूँ मैं, चालू हो गया है, मदर टंग है मेरा, so I can connect a lot of people. So it started like that, और मैं करती रही बस. How long did it take you to monetize your content? Because you're saying that you professionally, started this full time in 2021. Yes. It's just been 1 year, and you're saying that you've already monetized your content. कितना time लगा अपना content monetize करने में? तो कुछ तो क्राइटेरियाज होते हैं जिनको मीट करना पड़ता है, तब जाके कोई पेज हो, कोई चैनल हो, वो मोनेटाइज होता है. तो मेरा भी हुआ था. मेरा क्राइटेरिया बहुत जल्दी रीच हो गया था, लेकिन उसके बावजूद कुछ टेक्निकल ग्लिच था शायद, इसलिए हो नहीं पा रहा था. लेकिन कुछ ही महीनों में वो सब रिजॉल्व हो गया, और जैसे कि मोनेटाइज हो गया मेरा पेज, तब से ये मतलब और भी जोर शोर से कर रही हूँ. And you're primarily making videos for Facebook, am I right? Yes, मैं दूसरे प्लेटफॉर्म्स में हूँ, लेकिन मोस्टली आई मेक वीडियोस फॉर फेसबुक. So why choose Facebook? Why pick Facebook as the platform that you want to use to reach out to an audience? Facebook मुझे लगता है कि is very easy to handle and very easy to understand. जब भी आप कुछ नया शुरू करते हो, तभी आप थोड़ा बहुत तो कंफ्यूज रहते हो कि कैसे आप अप्रोच करोगे, कैसे लोग इसको लेंगे या कुछ. लेकिन ये सब सोचने के अलावा अगर आप जिस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो उसको भी लेके सोचने लगो, तो कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी पे उसका असर होता है, एंड इट कम्स एज अ नेगेटिव इम्पैक्ट. तो फेसबुक पे ऐसा नहीं है, इट्स क्वाइट इजी, और आपको समझने में उतना दिक्कत नहीं होता है. आप बस अपना काम करते हो, वीडियो को अपलोड करते हो. लेकिन हाँ, बैकएंड में थोड़ा बहुत काम करना होता है, लेकिन वो सारा कुछ मतलब अगर देखा जाए तो वो भी बहुत इजी है करने में. तो एज अ बिगिनर, एज अ कंटेंट क्रिएटर, इफ यू आर जस्ट स्टार्टिंग, तो फेसबुक इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म. ये मतलब मेरे लिए तो मुझे वही लगा. अगर कोई मुझसे पूछता भी है तो मैं उससे ऐसे ही बोलती हूँ, रेकमेंड करती हूँ कि आप फेसबुक से शुरू करो, ये इट्स इजी. And a lot of the times I've heard creators who are big on Facebook talk about how they're part of clubs, Facebook clubs, etc. Is that something that you're also looking at? Is the Facebook team very often in touch with you? Do they help you out with videos? Facebook to me is a very professional platform, and the people who work in Facebook, who take care of the creators, who are always in communication with them,
they are very helpful, and not only that, they also provide us with regular information so that we can generate more views, we can reach to a larger audience. जो जो कुछ भी वो मुझे बोलते हैं कि आप ऐसा करो, आप और फ्रिक्वेंट बनो, उसको कंसिस्टेंट बने रहो अपने वीडियोस के साथ, तो वो सारा कुछ मैंने फॉलो किया है, और मुझे मतलब पॉजिटिव रिजल्ट के अलावा कुछ मिला नहीं है, तो इट्स रियली गुड. Okay, and initially, like you said, that when we start something new, it's initially difficult, no, to navigate and to figure out what's the right thing, what's the wrong thing, how to go about this. So how long did it take you to, kind of understand, Jhilam, that, acha, theek hai, if I get these many views, then I can probably monetize my content, and maybe brand endorsements were a good idea, collaborations were a good idea. Did you, have somebody that was talking you through this from the start? Or did you sort of, make mistakes and then learn along the way? गीता में कहा गया है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो. तो मैंने फल का चिंता किया नहीं, मतलब मैं करती रही. तो उसमें देखा कि कुछ लोग, अगर 1000 कमेंट्स आ रहे हैं तो उसमें 990 हैं जो पॉजिटिव हैं, 10 कमेंट्स है जो नेगेटिव है. आजकल उतना मैं पढ़ती नहीं कमेंट, लेकिन पहले बहुत ज्यादा पढ़ती थी, क्योंकि मुझ में वो था, जिल था जानने का कि क्या लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं. तो मुझे ये लगा, मतलब मैं ऑब्जर्व करने लगी कि कौन सी बातें लोगों को अच्छी लग रही हैं. तो मैंने उन बातों पर, उन पॉइंट्स पर फोकस करना ज्यादा चालू किया. तो तब जाके जब वो सारा कुछ इंक्लूड किया नेक्स्ट वीडियोस में, तो व्यूज आने लगे. तो तब जब मैंने कुछ करने का मतलब इनिशिएटिव लिया कि इसको और स्ट्रॉन्ग करूं, इसको और अच्छा करूं, तो तब मैंने देखा कि आउटपुट अच्छा आया है. लेकिन जो नेगेटिव कमेंट्स भी हैं उसको भी मैंने देखा है. जो फालतू की बातें हैं वो मैं नहीं पढ़, अगर पढ़ती भी हूँ तो वो मुझे इम्पैक्ट नहीं करते, है ना. पीपल ट्राई टू मेलाइन यू सम वे, बट वो सब देखूं तो काम नहीं होगा. लेकिन जब मैंने देखा है, हाँ, जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है वो मैंने लिया है, वो मैंने पढ़ा है कि कोई बोल रहा है कि नहीं कोलैबोरेट मत करो, आप खुद ही करो, मैंने उस बारे में भी सोचा है. लेकिन मुझे बस यही है कि मैं वीडियोस देती रहूं, और उनके हिसाब से अगर मेरे पास कुछ प्रमोशनल, कुछ कमर्शियल डील्स आए तो आएंगे, वेलकम. बट मुझे मेरा मेन फोकस रहता है मेरा वीडियो, मेरा कंटेंट. There are very new ways now that I've been noticing content creators, if they're endorsing a brand, for instance, they incorporate that brand's advertisement in a video idea. Right, a lot of influencers are doing that on social media. Do you think that that's probably the way to go now? Because we were just speaking to Indrani before this, and she said that value is very important. So you need to keep giving some sort of value to your creators. So do you think that going ahead, ये जो छोटे-छोटे तरीके हैं of monetizing content, these are also going to continue to evolve? And is that something that you see is the right path that creators are now adopting? देखिए, जब आज क्रिएटर्स आज हैं, पिछले 10 साल में देखेंगे तो कंटेंट क्रिएशन जो एक ऑप्शन होता है, करियर ऑप्शन, ये पिछले 10 साल में आया है. उससे पहले सिर्फ फिल्मी सितारे थे जिनको हम देखते थे टीवी में, तो वो भी एंडोर्स करते थे, वो ही एंडोर्स करते थे. और क्रिकेटर्स, मतलब जो हमारे देश में सबसे ज्यादा पॉपुलर है. उसके बाद आए ये कंटेंट क्रिएटर्स. हमने भुवन बाम को भी देखा है लेंसकार्ट के लिए मतलब ऐड करते हुए. तो people are getting new faces to these social media platforms. तो अभी अगर हम अपने कंटेंट में एक कुछ भी डाल दें, एक प्रोडक्ट का प्रमोशन करें, ऑब्वियसली वो अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए. तो अगर उसका हम प्रमोशन करें तो लोगों को भी लगता है कि हाँ, ये जो क्रिएटर है ये कहीं ना कहीं ये वैल्यूड है, नहीं तो बड़े ब्रांड्स इसको अप्रोच नहीं करते. So somehow it's giving you a commercial impact. It's also giving you a social impact. To me, brand endorse करना सिर्फ commercially नहीं, एक क्रिएटर को कहीं ना कहीं उसकी आइडेंटिटी भी बिल्ड करने में बहुत हेल्प करती. And so, if let's say I talk about regional content creation in particular, what is the market like? What have you sort of realized while creating videos in Bengali? Are there a lot of players in the market? Are there fewer players compared to, in Hindi and English? देखिए, मैं एक बंगाली हूँ,
मेरा मदर टंग बंगाली है। और ये जाहिर सी बात है कि जो बंगाली में बात करते हैं, कैलकाटा वाले या बंगाल वाले, वो सारे मेरे वीडियोस देखेंगे तो इजीली मेरे से कनेक्ट कर पाएंगे। लेकिन ये भी सोचना चाहिए, ये जो पड़ोसी कंट्री है बांग्लादेश, वहां भी सारे लोग बंगाली में बात करते हैं। Yeah. इट्स अ होल नेशन दैट टॉक्स इन बंगाली, दैट अंडरस्टैंड्स बंगाली। और उसके बावजूद अगर मैं देखूं तो पूरे वर्ल्ड में जो बंगाल के कम्युनिटी जहां पर भी रहते हैं, फेसबुक तो ऑन करते ही हैं कहीं ना कहीं। और वो कि ज्यादातर दिन के पूरे टाइम पे एक फॉरेन लैंग्वेज में दे आर टॉकिंग, दे आर हैविंग देयर चैट, देयर बैंटर, देयर आर्ग्यूमेंट, ऑल इन अ फॉरेन लैंग्वेज। और मतलब सडनली वो अपना जब मदर टंग उसको सुनाई देता है एट द एंड ऑफ द डे, उसको कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। तो दे आर ऑल्सो माई ऑडियंस, जो दुनिया के कोने कोने में बसे हैं। तो जब मैं देखती हूँ कि न्यू फॉलोअर्स एडेड फ्रॉम दिस कंट्री एंड दैट कंट्री, एंड दे आर बंगाली एंड दे आर स्टेइंग इन इटली और फ्रांस और व्हाटएवर, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो तब मुझे ये लगता नहीं है कि आई एम अ रीजनल कंटेंट क्रिएटर, क्योंकि देखा जाए तो सभी तो रीजनल ही है। You're creating a global community then in a certain sense. Yes. That's transcending just borders within India. It's going on to शायद मेरा लैंग्वेज जो है वो सबको समझ में ना आए, ये नेचुरल है, सबको समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिनको समझ में आता है वो जहां भी बसे हैं, अगर दे आर यूजिंग फेसबुक, तो कहीं ना कहीं उसको मैं दिखूंगी और मुझे वो पसंद आएंगे शायद, मतलब मेरे कंटेंट उनको पसंद आएंगे। Absolutely. So I'm speechless. That is such a good thought. Jilam, before we let you go, and I have one last question for you because we've run out of time, unfortunately. What is the one thing that you think that content creators in India today are lacking that you wish they had? मतलब ऐसी कौन सी एक चीज है जो आप सोचते हो कि एज अ प्रोफेशनल मेरे पास अगर होती तो मतलब 4 सितारे लग जाते। मैं ये कहूंगी कि डोंट गो विद द फ्लो ऑलवेज। इट्स गुड टू गो विद द फ्लो बट नॉट ऑलवेज। जब भी कोई ट्रेंड आता है सारे लोग उसको ही पकड़ लेते हैं, तो क्या होता है ना, यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ ट्रेंड। बी अ ट्रेंड सेटर इंस्टेड। आप कुछ ऐसा करो कि लोग आपका ही देखें और आपको फॉलो करें। तो यू मस्ट एक्सप्लोर योरसेल्फ, यू मस्ट नो दैट व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। आपका कौन सा टैलेंट वो है जो और किसके पास नहीं है। तो ये आपको ही पहचानना पड़ेगा और उसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि दुनिया में या आपके जो एरिया है, आपका एरिया है, उसमें सिर्फ आप ही वो एक आदमी हो, एक इंसान हो जो वो कर सकता है। बी अ ट्रेंड सेटर। One last message to the audience that is watching you, to your audience, a message that you want to give them in Bengali, if at all, through this medium. बेस्ट पार्ट ये आप ही लोग हैं जिनके लिए मैं एक नेशनल चैनल पे आने का मुझे मौका मिला, और ये आप लोगों का प्यार है तो आपने मुझे ऐसा काबिल बनाया कि मेरा भी कोई ইন্টারভিউ ले। আপনাদের সকলকে অনেক ধন্যবাদ। এবং যিনি আমার ইন্টারভিউ করছেন পরিধি, বাট আমরা বাঙালিরা তাকে পরিধি বলে ডাকি, তো পরিধিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, এবং চ্যানেল নিউজএক্সকেও আমার অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি। Thank you so much Jilam, for being with us. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.